اور میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا کے پیدا کر دیا۔ حضرت بایزید فرماتے لوگوں پھر یہ کتا مجھے جواب بھی دیتا ہے کہ بایزید اللہ نے تجھے انسان بنا کے پیدا کیا، اس میں تیری عبادتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ عبادتیں تو نے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کی ہے، اس میں تیری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے کہ دعائیں تو نے پیدا ہونے کے بعد مانگی ہے۔ اگر اللہ نے تجھے انسان بنا کے پیدا کیا ہے تو یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت بایزید اگر تم اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دو اور قیامت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو تو اللہ کا ایک احسان کہ اللہ نے تجھے انسان بنا کے پیدا کر دیا، تم احسان کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ذرا غور کریں آپ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور صرف مسلمان بنا کے نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کر دیا۔ اس نبی کی امت میں، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء اور رسول نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں نبی اور رسول نہ بنا کر کے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے موسیٰ نہ بنا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرما دے۔ اب ذرا غور کریں آپ، دیکھیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کیا۔ ہم اور آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں دیکھیں آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے، اس نبی کی امت میں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام نے اللہ سے دعا مانگی ہے، لیکن ذرا غور کریں آپ اللہ نے آج ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ حضور کی زندگی کو پڑھنے کا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حضور کی زندگی کو سمجھنے کا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حضور کی زندگی کو سننے کا آج ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس عظیم الشان نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا غور کریں آپ دیکھیں کیسی عظیم الشان نبی کی زندگی ہے آپ کی، دیکھیں آج جو اسلام ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، ذرا آپ یہ بتائیں کہ اسلام کس چیز کی بنیاد پر پہنچا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہہ دے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج جو اسلام پوری دنیا میں پہنچا ہے اور آج جو اسلام پوری دنیا میں تمام مذاہب میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والا مذہب بنا ہے، کچھ لوگ ہیں جو نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج جو اسلام بڑھ رہا ہے اور آج جو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے یہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، آج جو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے وہ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کی بنیاد پر۔ ذرا غور کریں آپ حضور کی زندگی کو سماعت کریں آپ، بس میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ آج جو اسلام ہم تک اور آپ تک پہنچا یہ کس چیز کی بنیاد پر پہنچا ہے؟ حضور کی کردار کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ ذرا اپنے نبی کی زندگی کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، حضور کی زندگی کو سمجھ کر کے آپ دیکھیں اور حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ دیکھیں ہمارے اور آپ کے آقا نے کسی کی گردن پر تلوار رکھی، یہ نہیں فرمایا تھا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، نہیں، آپ حضور کی زندگی کو پڑھ لیں آپ کو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ آپ کے اور ہمارے آقا نے کسی کی گردن پہ رکھ کے تلوار کا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، نہیں، بلکہ حضور کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھا ہے اور وہ حضور پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کرے حضور کا اخلاق ملاحظہ کرے۔ دیکھیں ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، توجہ ہے، حضور کی ایک جنگ سے واپسی ہے، اللہ کے نبی ایک طرف کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ غور کریں آپ دیکھیں حضور کے ساتھ میں جو صحابہ تھے نا وہ ضرورت کے تحت ادھر ادھر چلے گئے، حضور تنہا ہے اور حضور کی تلوار ذوالفقار حضور کے بغل میں رکھی، کون سی تلوار؟ جس کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی جیسا بہادر نہ ان سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا، اور ذوالفقار ایسی تلوار ہے کہ اس جیسی تلوار نہ اس سے پہلے آئی ہے اور نہ اس کے بعد آئے گی۔ حضور کے بغل میں تلوار رکھی ہے، ایک یہودی شخص ہے جس کا تعلق دیہات کے علاقے سے ہے، حضور کے بغل سے تلوار کو اٹھاتا ہے اور تلوار کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑتا ہے اور آواز دے کر کے کہتا ہے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ذرا غور کریں آج حضور کی آنکھ کھلی ہے، حضور نے اس کو دیکھا ہے، حضور مسکرائے ہیں اور حضور مسکرا کے فرماتے اللہ بچائے گا۔ جب حضور نے کہا اللہ بچائے گا اس کے ہاتھ سے
तलवार छूट गई है। हुजूर ने तलवार उठाई है और हुजूर तलवार हाथ में लेते हैं और हुजूर कहते हैं अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर ने कहा कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा नहीं मानता हूँ। हुजूर ने कहा गवाही देता है कि अल्लाह एक है। उसने कहा नहीं मानता हूँ। हुजूर ने कहा कहता है कि अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है। उसने कहा मोहम्मद मैं तुम्हें कत्ल करने आया था, अगर तुम्हें मेरी जान भी लेनी है तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा ठीक है, तू मुझे कत्ल करने आया था, क्या मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। सहाबा फरमाते लोगों जब वो शख्स वापस गया है अपने कबीले में और जा करके हुजूर के इखलाक की बात जब उसने अपने कबीले में की है तो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसका पूरा कुंबा पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। और ईमान फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, वलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा गौर करें आप, ये हुजूर का इखलाक है और आज जरा हम अपना इखलाक मुलाहिजा करें। पहले हुजूर का इखलाक आप सुने, लेकिन ये हुजूर का इखलाक ही है ना कि हुजूर के इखलाक को लोगों ने देखा है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जरा गौर करें, अभी बिल्कुल माजी करीब में एक शख्स है जिसने ईसाइयत को छोड़ा है और कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। जरा गौर करें आप, तो दुनिया ने उससे पूछा है कि तूने ईसाइयत को छोड़ा क्यों है, इस्लाम को तूने एक्सेप्ट क्यों किया है, आखिर तूने अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ा क्यों है और इस्लाम को कबूल क्यों किया है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुझे इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया है और तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। तो ईसाई शख्स कहता लोगों सुनो, मैंने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम के प्रॉफिट की, मुसलमानों के आका की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया और उनकी जिंदगी के सिर्फ 2 वाक़यात मैंने पढ़े थे और मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। गौर करें, उससे पूछा गया तुमने क्या पढ़ा, वो कहता है गौर करें, वो कहता है मैंने इस्लाम के प्रॉफिट की जिंदगी में पढ़ा, मुसलमानों के आका की जिंदगी के बारे में मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने उनकी जिंदगी के 2 वाक़यात का मुताला किया और वो वाक़यात मेरे दिल में ऐसा असर कर गए कि मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया। वो कहता है मैंने पहली बात पढ़ी कि इस्लाम के पैगंबर हैं, सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। जरा गौर करें आप, हुजूर हैं, सहाबा किराम का मजमा है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में दौड़ता हुआ आया और आने के बाद अर्ज करता है अल्लाह के नबी बड़ा परेशान हूँ, हुजूर मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से मुझसे बिछड़ गया है, हुजूर मेरी बीवी का रो रो करके बुरा हाल है। अल्लाह के नबी इकलौता बेटा है, बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह ने वो बेटा अता किया है, हुजूर मेरी आंखों की ठंडक है मेरा बेटा। अल्लाह के नबी मेरी बीवी का रो रो के बुरा हाल है, हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, सुबह से बिछड़ा है, हुजूर जहाँ जहाँ मुमकिन था मैंने तलाश कर लिया है। अल्लाह के नबी अब आपकी बारगाह में आया हूँ, हुजूर आप दुआ फरमा दे ताकि वो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। अभी हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाने वाले थे कि एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते अल्लाह के नबी मैंने इसके बेटे को फला बाग के पास खेलते हुए देखा है। जब उसने ये सुना है उसने सहाबा के मजमे को छोड़ा है और बड़ी तेजी के साथ बाहर निकल गया है। हुजूर ने फरमाया उस शख्स को बुला के लाओ। सहाबा गए हैं और हुजूर की बारगाह में उस शख्स को दोबारा लेके आए हैं। अब तवज्जो करें आओ, हुजूर ने फरमाया बहुत जल्दी आपको यहाँ से जाने की। वो शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी मेरा इकलौता बेटा है, हुजूर सुबह से मुझसे बिछड़ गया है। अल्लाह के नबी अब जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं अपने बेटे का दीदार करना चाहता हूँ, हुजूर जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया बेशक तुम देख लेना, मगर मेरी एक बात याद रखो, उस बात को जहन में बिठा लो, मेरी एक बात याद रखना। वो सहाबी अर्ज करते अल्लाह के नबी फरमाए मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर फरमाए, हुजूर ने फरमाया सुनो जब तुम अपने बेटे के करीब जाना और जिस बाग के करीब तुम्हारा बच्चा खेल रहा है ना, जब तुम उस बाग के करीब पहुंचना तो जो नाम तुम अपने बेटे का रखा है तुमने वो नाम लेकर के तुम पुकारना, अपने बेटे को बेटा कह के ना पुकारना। वो शख्स अर्ज करता अल्लाह के नबी आखिर वो मेरा बेटा है, हुजूर अगर उसे बेटा कह दो तो इसमें हर्ज क्या है। अल्लाह के नबी वो मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का टुकड़ा है, हुजूर अगर उसे बेटा कह दो मोहब्बत से तो इसमें हर्ज क्या है। हुजूर ने फरमाया सुनो जब तुम अपने बेटे के करीब जाओगे जिन बच्चों के साथ
तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, मुमकिन है कि उसमें कोई ऐसा बच्चा भी हो कि जिसका बाप ना हो, वो यतीम हो, तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, तुम्हारी आवाज में बला का दर्द होगा, तुम्हारी आवाज में बला की शिद्दत होगी, तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे। अगर उस यतीम का दिल छलनी हो गया कि अल्लाह काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो वो भी मुझे बेटा कह के पुकारता। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दिल को तो ठंडक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर एक यतीम का दिल टूट गया उसके गम का मदावा तुम्हारे पास नहीं होगा। वो ईसाई शख्स कहता लोगों, जिस नबी को एक यतीम बच्चे के दिल के टूटने का इतना ख्याल हो, उससे अजीम इंसान कायनात में कोई हो नहीं सकता है। और जिस मजहब का पैगाम लेकर के वो दुनिया में आए हैं, उससे अजीम मजहब कायनात में कोई हो नहीं सकता है। उसने कहा दुनिया वालों गवाह रहना, इसीलिए मैंने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर की जिंदगी वो कहता है जिस नबी को यतीम बच्चे के दिल के टूटने का इतना ख्याल हो, वो मना करते हैं कि जब जाना तो बेटा कह के मत पुकारना। अगर किसी बच्चे का दिल छलनी हो गया, अल्लाह मेरा बाप भी अगर आज जिंदा होता तो इसी तरह वो मुझे बेटा कह के पुकारता। हुजूर ने फरमाया जो नाम तुमने रखा है वो नाम लेकर के तुम पुकारना, इसलिए कि नाम में वो मोहब्बत नहीं होती है। जब बाप अपनी औलाद को बेटा या बेटी कह के पुकार दे तो जबान में जो मिठास होती है ना और जो मोहब्बत की शिद्दत होती है ना, उसका अंदाज ही कुछ अलग होता है। वो शख्स कहता है मैंने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा ना, और जब मैंने उनकी जिंदगी के 2 वाकयात पढ़े, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया। उससे पूछा गया दूसरी बात क्या है, तो वो कहता है मैंने पढ़ा इस्लाम के पैगंबर हैं, फिर सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। और इसको रिवायत करते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि एक बूढ़ी औरत हुजूर की बारगाह में आ गई और हज़रत उमर फरमाते लोगों वो ऐसी औरत थी, इतनी बड़ी पागल और मजनून औरत थी कि उसे देख करके अरब के लोग अपना रास्ता बदल देते थे कि अगर ये मिल गई इतनी देर बातें करेगी ये पूरा वक्त खराब करके रख देगी। देखिए पागल औरत है, बूढ़ी औरत है, हुजूर की बारगाह में पहुंची है और हुजूर को इशारा करके अपनी तरफ बुलाती है। हुजूर उसके करीब गए हैं, उसने कहा मोहम्मद मैं यहाँ तुमसे बात नहीं करूंगी, अरब के रेगिस्तान में चलो, वहां मुझे तुमसे गुफ्तगू करनी है। हुजूर उस बूढ़ी औरत की बात सुनने के लिए गए हैं। हजरत उमर फरमाते लोगों ऊपर गर्म सूरज और नीचे गर्म रेत, हुजूर घंटों उसकी बातों को सुनते रहे। जब हुजूर वापस आ गए ना,